Hello, everyone. Good morning and good afternoon. Hi, Honest Trader. How are you? I'm good, Destin. How are you? How was April? Yeah, April was a mixed bag. ऊपर नीचे होता रहा. मार्केट ने काफी उथल पुथल करी. फाइनली ऊपर बंद हुआ, लेकिन हम लोगों को आई थिंक व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक महीने को या एक पर्टिकुलर इंटरवल को हम अपना सक्सेस कैसे माने और अपना गोल अचीव कैसे माने. तो क्या क्या आज हम उस चीज के बारे में बात करते हैं कि गोल अचीव करने का मतलब क्या होता है किसी भी ट्रेडर के लिए. Correct. Or I think month is good, but I think we should also look at are we translating that performance to a quarter, and then are we translating that performance to, at 6 months, and then at an yearly level? Are we doing that or not? Are the parameters replicating at those level as well? I think that is a true success rate. So basically, you are saying we need to divide and conquer to start saying, oh, you need 3% per month, but can it be replicated over a longer period of time? Agreed. Yeah, that's how you scale, right? That's how you can think long term. People look for daily returns, weekly returns, but I think if you want to survive in the long term and perform as well and outperform the market consistently, I think you need to look at the bigger picture. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट और एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स को हम अपना सक्सेस क्राइटेरिया मानते हैं किसी भी महीने के लिए. Perfect. Yeah. Let's move to the next slide. Okay. तो दो बहुत ही अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज, इफ वी डिवाइड देम इनटू, विल बी पोजिशनल trades and then intraday trades, right? I think you are more of an intraday trader and I more go with the positional trades. दोनों ही ऑप्शंस में रहती हैं, दोनों ही स्ट्रेटजीज बेस्ड रहती हैं, लेकिन दोनों का टाइम फ्रेम अलग होता है. You don't want to carry your position overnight. I'm more comfortable with stock options rather than index options, right? Correct, and which actually shows whatever suits you, right? You can move into that particular strategy. Whatever suits your character, right? You can do your trading in that particular way, right? And succeed as well. Correct. तो जैसे कि maybe I'll cover for the positional one and Honest Trader you can cover it for intraday. तो मेरे लिए सक्सेस क्राइटेरिया पहली चीज होती है कि मैं अपनी पोजीशंस पे कितना चर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी पोजीशन लूं, अगर वो मेरे फेवर में जा रही है या मेरे अगेंस्ट में जा रही है, तो मेरे को उसको रीवर्क करने का है. मेरे को आई हैव टू सी कि मैं कैसे अपनी स्ट्राइक्स मूव करूं, कैसे अपने प्रीमियम्स मूव करूं और कैसे अपने लॉस को कर्टेल करूं. सो वो अगर मेरे को बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि the way I chose my strategies early on were not right. उसमें कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चर्न करना पड़ रहा है. तो इसलिए मैं डाल रहा हूं कि परसेंटेज कॉस्ट एंड चार्जेस एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना परसेंटेज कॉस्ट कम रहेगा, इसका मतलब जो मैंने शुरू में बेट्स ली हैं, जो मैंने शुरू में ट्रेड्स ली हैं, वो उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर वो फॉल्टर होते हैं तो इसका मतलब मुझे अपने स्ट्रेटजीज को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. शायद प्रीमियम्स कहीं पे ज्यादा सेल करने पड़ेंगे या मेरे को और कोई कॉल या पुट बाय करना पड़ेगा. You have to readjust your strategy, right? That's what you're basically saying. और you have to readjust your strategy, और वो हमें करनी भी चाहिए. पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सक्सेस क्राइटेरिया कि मेरे लिए बहुत सबसे बढ़िया महीना वो जाएगा कि मैं अपने टाइम फ्रेम के शुरू में जो ट्रेड्स लूं और एंड तक उसको कभी रीऑर्गेनाइज ना करूं या रीस्ट्रेटेजाइज ना करूं. That is like achieving perfection, or market has blessed in that particular month. वो वैसा हो नहीं पाता है लेकिन फिर भी. दूसरा है, मैं अपनी स्टॉप लॉसेस हैं पर स्ट्रेटजी. It's not per so there are two kind of stop losses which we keep, right? एक तो हर स्ट्रेटजी का अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, and which can be like if you are selling premium, so it can be like 50% of that premium which you have sold. तो वो बाहर चला जाता है तो that will be a stop loss for my strategy. तो ये पैरामीटर्स रहेंगे जो मैं देखूंगा कि मेरी इस महीने की या इस टाइम फ्रेम की, चाहे वो टाइम फ्रेम 15 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, लेकिन वो ओवरनाइट पोजीशंस के साथ है, तो मैं हर स्ट्रेटेजी के लिए स्टॉप लॉस रखूंगा. लास्ट जो चीज आती है वो सबके लिए है ड्रॉ डाउन.
तो अगर मेरा महीना ऐसा जा रहा है कि 10% लॉस हो जा रहा है, उसके बाद मैं रिकवर करके 1% प्रॉफिट में जा रहा हूँ, एंड स्टिल मैं अपने स्टॉप लॉसेस हिट नहीं कर रहा हूँ, तो वो ड्रॉ डाउन मेरे को देखना है कि मेरा ड्रॉ डाउन बहुत ज्यादा ना हो। ड्रॉ डाउन हो सकता है विच इज परफेक्टली फाइन, लेकिन मुझे हर महीने या हर चीज का एक ड्रॉ डाउन पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा फॉर द टोटल एलोकेशन ऑफ माय मनी। So you are saying in case you reach some particular X amount or X percentage of your total capital, that's where you say that no, my month is done. Yes. I'll stop now. Correct. So that will be my stop loss for the month. मेरे total money का let's say if I lose 3% और मेरा down हो गया 3%, draw down पे आ गया, maybe I'll say yeah, I'll quit for the month और मैं उस महीने बाकी फिर कोई trade नहीं लूंगा। ठीक है। And I think this is where discipline is very important. Correct. लोग actually में अगर 3% लॉस हुआ है वो सोचने की क्या मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, और जहां वो 3% लॉस पे रुक सकते थे वो एक्चुअली फिर 5 या 6% लॉस पे जाके रुकते हैं फिर, और देन दे रिग्रेट एंड देन दे से दैट आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड एट 3%. दैट्स राइट। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जो मैं कंसिडर करता हूं कि मेरा महीना कैसा गया। इसमें देखिए आप कहीं पे भी मैंने परसेंटेज रिटर्न्स की अभी तक बात नहीं की है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी बाकी चीजें हैं। तो इवन 2 केसेस होते हैं, एक महीना मुझे 3% रिटर्न आया लेकिन ड्रॉडाउन मेरा -5% तक गया, 5% तक गया, तो मैं क्या वो महीना मेरे लिए बेटर है या मेरे लिए वो महीना बेटर है जिसमें ड्रॉडाउन हुआ ही नहीं, राइट? तो वो एक चीज पीस ऑफ माइंड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और एक कंसिस्टेंट बिल्डअप के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं तो मैंने ये शायद आपसे ही सुना था मैंने ये कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कितना पीसफुली कमा रहे हो आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितना इजीली और कितना पीस ऑफ माइंड के साथ कमा रहे हो आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी लिए आप ज्यादा पैसा डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है तो आप कभी ज्यादा पैसा डिप्लॉय भी नहीं कर उसमें फिर आपको डर ही लगा रहेगा कि आपको हो सकता है रात को नींद ना आए, आपका माइंड वहीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना बताइए फॉर योर इंट्राडे सिस्टम्स। तो इंट्राडे का आई थिंक मेरा तो क्लियर कट पिक्चर है, देयर आर नो एडजस्टमेंट, देयर आर रूल्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड। I come in, I log into my system in the morning at market open. It sees few parameters and then by the end of the day, अगर वो positions हमारी open है, it shuts it. Otherwise, जो भी parameters के हिसाब से loss हुआ है, it automatically cuts the position. I keep a daily stop loss limit depending on which day of the week is. मेरी stop loss limit उस हिसाब से होती है. तो just to give an example, on Thursday, which is expiry of Bank Nifty, I take a 2% risk on my portfolio. Other days it's a lesser amount of risk. क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो उस दिन प्रॉफिट भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं. इट्स ऑल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड. जो मैं देखता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने डिप्लॉय की है उसके लिए मैं देखता हूँ कि व्हाट इज माय विन लॉस रेशियो. एनीथिंग that is less than 60% win and 40% loss is a no for me. So I've deployed a strategy where roughly the win ratio is somewhere around 65-70% and the loss ratio is somewhere around 30-35%. तो बेसिकली आप पूरे महीने के सारे ट्रेड्स को लेके उसमें कितने विन्स रहे हैं कितने लॉसेस रहे हैं उसका रेशियो निकालते हो। करेक्ट है ना, और वो आपका 60% वो एक अच्छा महीना या अच्छा उसको माना जाएगा कि आपका महीने के अंदर यू आर मोर देन 60% विन लॉस। करेक्ट. एंड देन द एवरेज रिटर्न जो मैं देखता हूँ ऑब्वियसली होना चाहिए कि अगर मेरा विन रेशियो इज मोर देन 1 राइट लॉस से, तो वो ग्रेटर है मोर देन 50% है, तो ऑब्वियसली मेरा जो रिटर्न जो मेरा प्रॉफिट रेट है इवन इफ दो दैट गोज दैट इज इक्वल टू द लॉस, देन ऑल्सो आई मीन नेट प्रॉफिट ऑन दैट मंथ. तो जैसे अगर मेरा 60% विन रेशियो है और 40% लॉस रेशियो है और मेरा विन और लॉस का जो परसेंटेज है वो भी 1:1 है, then also I'm in profit for that particular month. तो वो भी मैंने जो देखा है ट्रेडिंग के अंदर इट्स ऑल जितना आप मैथ्स अप्लाई कर सकते हो उससे आपकी ट्रेडिंग और इजी हो जाएगी. जितना आप मैथ्स से दूर हो आई थिंक ट्रेडिंग आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी. सिंपल मैथ्स. करेक्ट, सिंपल मैथ्स. ओके. और मैं देखता हूँ कि मेरा ऑब्वियसली ड्रॉडाउन कितना है. ड्रॉडाउन मेरा जो मैं टेस्ट करता हूँ, अगर मेरा मंथली मेरा ड्रॉडाउन अगर 3% के करीब हो जाता है, देन आई स्टार्ट रिड्यूसिंग माई पोजिशंस. कि now I don't, and now if my monthly drawdown reaches somewhere around 4-5%, I don't do anything for that particular month. I wait for the next month and I start afresh.
प्लस एक चीज जो लोग बहुत सोचते हैं, मैंने अपना एडिशनल कैपिटल रखा हुआ है दैट आई डोंट ट्रेड, दैट इज फॉर माय ड्रॉ डाउन। अगर मेरे को ड्रॉ डाउन हुआ है 5% का, अभी तक वो नहीं हुआ है मेरे साथ, अगर वो 5% मेरा ड्रॉ डाउन हिट हो गया है तो नेक्स्ट मंथ आई एड ऑन टू दैट कैपिटल। जो मेरा एडिशनल कैपिटल है, वो एडिशनल कैपिटल अभी तक मैंने टच नहीं किया है, तो इससे एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि अगर मेरा ड्रॉ डाउन भी आ गया, आई कैन स्टिल कंटिन्यू माई स्ट्रेटेजी। और लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूंगा वो परसेंटेज कॉस्ट मेरी कितनी जाती है। आई थिंक इंट्राडे में यू हैव फिक्स्ड चार्जेस, यू कांट अवॉइड पेइंग ब्रोकरेज एंड ऑल द चार्जेस, सो that is something we can't avoid in intraday, because you have to show up every day in the market, take orders, and then recover those orders. So वो cost permanent है मेरे लिए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डिफाइन करें कि हम अपनी चीज को सक्सेस क्राइटेरिया क्या मानेंगे, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के सक्सेस क्राइटेरिया को क्या मानेंगे। अगर वो मीट नहीं हो रहा है तो हम क्या ट्वीक्स करने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। परसेंटेज रिटर्न्स इज जस्ट वन ऑफ दोज पैरामीटर्स, लेकिन बाकी चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज को हम दर्शाना चाह रहे हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए मतलब हम अपनी इस महीने की क्या क्या हुआ है ऑनेस्ट ट्रेडर वो एक बार चेक कर सकते हैं। तो शायद मतलब अगर हम देखें इंट्राडे सिस्टम्स में, एंड दिस इज अक्रॉस मेनी पोर्टफोलियोज, ये हम एवरेज करके दिखा रहे हैं, तो अलग अलग पोर्टफोलियो साइजेस हैं, पर टोटल कैपिटल डिप्लॉयड काफी ज्यादा है इसमें। तो इंट्राडे सिस्टम और ये महीना काफी सही रहा है। इंट्राडे सिस्टम्स ने 3.8% रिटर्न दिए हैं और पोजिशनल सिस्टम ने 4% रिटर्न दिए हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, पर ये चीज दर्शाती है कि दोनों चीजों में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिले, ऐसा ना हो कि बहुत वेरिएशंस हो। और ये आई थिंक ये डिसेंट प्रॉफिट माना जाएगा। 4% अगर मंथली कर लेते हैं तो आई एम श्योर वी आर गेटिंग टू 70 to 80% रिटर्न ईयरली। करेक्ट, मतलब मेरा तो ये रहता है इंट्राडे सिस्टम के, एटलीस्ट इफ आई एम गेटिंग 3% ऑन एन एवरेज इन अ मंथ, आई मीन इफ आई कंपेयर, आई थिंक आई विल बी मोर देन हैप्पी विद लेसर ड्रॉडाउन्स। वो पीस ऑफ माइंड वाली बात जो आप कह रहे हैं। करेक्ट। और क्या पैरामीटर्स हैं ऑनेस्ट ट्रेडर? सो इसमें मे बी इंट्राडे सिस्टम्स के यू कैन गो थ्रू सम ऑफ देम which you have. Right, so I think in April the total trading days were 16, जिसमें से हमको 11 दिन प्रॉफिट हुआ था, 5 दिन लॉस हुआ है। और जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि मेरा प्रॉफिट और लॉस अगर आप देखोगे कंपेरेबल है, मगर जो विन डेज और लॉस डेज उसमें बहुत डिफरेंस है, दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू द नेट रिटर्न्स। और ड्रॉडाउन अगर आप देखेंगे तो इट वाज 1.3% एंड विच गॉट रिकवर्ड इन अ पीरियड ऑफ 4 days। तो 4 दिन मेरा प्रॉफिट नीचे गया, नेगेटिव में रहे फ्रॉम द टॉप, और फिर वो 4 दिन के बाद वापस टॉप से और ऊपर चला गया। सो दैट वाज माय वो इंट्राडे सिस्टम हमारा परफॉर्म किया ऐसा। गुड। और आई थिंक अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा कुछ ग्राफ था, और अगर आप देखेंगे कमाल की बात यह 15 अप्रैल तक आप नेगेटिव था बिल्कुल। और ये था वो ड्रॉ डाउन पीरियड जो था। करेक्ट। एंड देन 15 अप्रैल के बाद इट ऑल शॉट अप। सो अगर आप देखेंगे, इफ समवन हैडंट कंटिन्यू विद द स्ट्रैटेजी कि मेरे को तो इसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा पहले 15 दिन, और उसने छोड़ दी होती वो स्ट्रैटेजी, उसके बाद का ग्राफ देखिए आप, उसके बाद ही आप गॉट ऑल द रिटर्न्स। तो वो तो मार्केट का खेल है ना, कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको ऊपर नीचे होते ही रहेंगे। बिल्कुल। आपको जो भी what you have to see is कि over your period which you consider either a month, week, 6 months, 3 months, कि आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है और वो आप कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं। आपको क्रीज पे टिके रहना है, बाउंसर आएगी तो आपको डक करना है, जैसे आपको हाफ वॉल्यूम मिलेगी आप टू हिट अ 6। तो ये जो पीछे का देख रहे हैं आप अप्रैल, दैट इज अ सिक्सर फॉर मी, जो हमारी स्ट्रैटेजीज ने किया, और जो इससे पहले वाला वो हमने डक डिपेंडिंग ऑन मार्केट ने कैसे किया। चलो, तो थैंक्स ऑनेस्ट ट्रेडर। आई थिंक आज के लिए हम यही रखते हैं, और बाकी आपके लिए और चीजें लेके आएंगे। प्लीज फॉलो अस। हम लोगों को सही लगेगा, हम लोग भी अपनी मेहनत बढ़ाएंगे, हम लोग समझेंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना फीडबैक दीजिए प्लीज, और हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। Correct, and we'll post the Twitter handles that we have, and please subscribe and follow our YouTube channel. Thank you so much. Till then, happy trading. Thanks.